हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय वीडियो। कल मैंने किसी का एनर्जी कैच किया जो कि बहुत ही ओवरवेलमिंग स्ट्रेसफुल था एंड उसके वजह से मेरा भी थोड़ा हेडेक होने लगा एंड एवरीथिंग एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो फॉर देम कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो, सो आई रोट इट डाउन हेयर because the energy was so intense that I have to write it down, wrote it down. So first we will read कि मैंने क्या लिखा है इसमें एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि हम कार्ड्स के द्वारा आप लोगों को बताएंगे. सो आई हैव रिटन करियर रीडिंग. हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंट्यूटिव मैसेजेस. So I am getting a lot of messages of someone's career and it is really making disturbance in my mind, so I have to write it down to feel some peace to do the meditation. And as I have chosen a red pen to write, which directly means some connection with relationship, which I am going to mention it here. So the messages are, as you can see, I have written it with red. मैं ये कल लिख रही थी क्योंकि मेरा बहुत हेडेक होने लगा and I have to write it down to feel the peace in my mind. So the messages are, let me give an example to let you understand what is your situation in career. And mistakenly मैंने यहाँ पे love लिख दिया था career की वजह से, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी I mistakenly wrote the word love, so definitely there is some connection with it. So the thing which is when you go to a gym, let's say to make the body. This is very underrated example, but you try to understand this because this is very important for you, as now also I am feeling the overwhelming, stressful and all that, so you have to hear it, and this is serious. Previously I make the video which was not serious, which was of love and relationship, but it is of career and it is really serious for you all. So the thing is, when you go to a gym, let's say to make body, but in the first few months, you will not see any physical change, but the work is being done. And if you stop because of this, then you will never be able to see your body. But if you believe in yourself, do your work with enjoyment, which is not measured by validity, then you will surely get the reward. That's your situation now. Please try to understand this, कि everything is according to your spirit guide. And I could see success on this path, and you just have to follow the path. If you were asking, am I on a right path? So yes, you are definitely on the right path. And there is one more guidance, that is, enjoy your path and don't wait for something good to happen. Let me turn the page. As everything is good, but just you need is to change your perspective, your thought process. Now other messages and guidance will be given by the cards. So this is the thing I wrote, and ये बहुत सीरियस है. लिटरली मैंने जब लिखा तो मैंने थोड़ा पीस फील किया ये लिखने के बाद, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर द मैसेज, बट आई रोट इट. सो थैंकफुल टू गॉड, टू माई स्पिरिट गाइड्स. सो द थिंग इज, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ आप कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाने के लिए बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं. एंड अगर आपने आप लोगों को ठीक नहीं किया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं. दिस इज़ द थिंग, एंड इसी के लिए ये बहुत सीरियस रीडिंग है जिसकी वजह मैं इतना हेडेक फील कर रही थी. तो प्लीज़ इग्नोर माई हेयर बिकॉज मैंने ऑयलिंग किया है इसे, एंड कल मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो मुझे बहुत ख़राब लगा एंड आई रोट इट. So I have written some questions also to ask here in the video and to solve it. The questions, one is, what is your current situation? Two is, what are difficulties and obstacle in your path? Third is, how to resolve this difficulty? Fourth is, connection with the love life, as I mentioned in the first part of this video. And fifth is, current guidance for you all. So let's start with the video, as it is very important for you and I hope that it will reach the right people. So if you are asking कि क्या चीज़ है जिससे मैं समझूँ ये वीडियो मेरे लिए है, तो आप लोग अपने करियर में बहुत स्ट्रेसफुल हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं हूँ, बहुत कन्फ्यूजन वाला एनर्जी है, एंड नेक्स्ट कोई भी स्टेप लेने में आप लोग बहुत डर रहे हैं, और
आई कुड से डिप्रेशन के पहले एक स्टेज पे हैं, क्योंकि ये मुझे सच में दिखाई दे रहा है कि मैं उतना स्ट्रेस फील कर पा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी जगह में हैं, आपको लग रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. वहाँ मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ, मैं कैसे अपने आप को वहाँ दिखाऊँ. ये वर्क प्लेस हो सकता है, ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हो सकता है, किसी भी चीज़ में होता है आपके करियर में. तो आप वहाँ फील कर रहे हैं कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, मैं यहाँ कैसे स्टैंड आउट करूँगा, मेरा होगा भी या नहीं, यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा भी या नहीं. नेक्स्ट इज सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है. यू आर फीलिंग लाइक आपका हर्ट ब्रेक, सफरिंग, ग्रीफ. सो द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिट गाइड. जैसा वो चाहते थे उसी तरह से हो रहा है ये सब कुछ. दिस कार्ड वॉज फॉलोइंग द हर्मिट. अभी आप अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं. आप दूसरों के लाइफ में इतना इंगेज हो चुके हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. आप ये नहीं जानते कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है, एंगर. सो स्पिरिट गाइड्स आपको अच्छे से जानते हैं. वो आपको उसी पाथ पे रख रहे हैं जिस पाथ पे आपको होना चाहिए था. लेकिन आप फिर भी इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आई कुड से कि आप लोग को ये चेंज करने का ज़रूरत है बहुत जल्दी. नहीं तो एट द एंड यू विल बी ऑन द पाथ विच वॉज नॉट मेंट फॉर यू. सी, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू रिलैक्स. सब कुछ सही हो रहा है. एंड आप अपने इस बात में, जैसे कोई भी बात है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई, ठीक है, तो उसमें आपको आप अपना सिलेबस, अपने कोर्स को आप बर्डन की तरह ले रहे हैं. आपको लग रहा है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरे पेरेंट्स मुझे इतना, लेट्स से कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना भरोसा करके रखे हैं, मेरा इतने लोग मुझ पर भरोसा करते कि मैं कर लूँगा और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. सो डोंट टेक इट एज अ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको दिल से, प्यार से वो सब चीज़ करना है, तभी आप अपना कर पाएंगे. क्योंकि आई एम सेइंग जो भी चीज़ है वो आपके अनुसार ही, आप जो चाहते थे वही हुआ है, आपने ही वो चूज़ किया था. देन वाई इट इज़ लाइक अ बर्डन और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको आप प्यार से करिए. और अगर आपका मन नहीं लग रहा है, यू शुड चेंज योर पाथ. जिस चीज़ में आपका मन लगे, क्योंकि मैं जैसा देख पा रही हूँ कि ये पाथ आपने ही चूज़ किया है. And then you are feeling like a burden, so this is not good. Sleepless night, रात को नींद नहीं आ रहा है, नींद पूरा नहीं हो रहा है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, यही सब का कार्ड है. देखिए, एज आई सेड, यही आपका सिचुएशन है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक ही है. आप क्यों इतना स्ट्रेसफुल एंड डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, आप क्योस क्यों बना रहे हैं अपने माइंड में इतना. So let's see what is the difficulty and obstacle in your path. The next question is, what are the difficulties and obstacle in your path? See, I have written it. I have written 5 question, and अगर मुझे लगेगा कि और भी कुछ जानने का आप लोग को ज़रूरत है तो मैं बताऊंगी. बट प्लीज़ आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस पर काम कीजिएगा, अपने को जानिएगा, जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, किसी के प्रेशर में आके कुछ मत कीजिए.
सी, मैंने कहा ही, आप अपने वर्क को एक बर्डन के रूप में ले रहे हैं। जो आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके पाथ का, वो बर्डन नहीं है, वो चीज़ आपने ही चूज़ किया है एंड वो आपको मन से करना है। आप पे कोई फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है मुझे, फैमिली या बड़े लोगों का प्रेशर, तो आप प्रेशर में आके वो सब चीज़ मत कीजिए। मैं सारी बात को रिपीट करके बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आई एम फीलिंग द लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेसफुल एनर्जी। आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते हैं। अगर आपको जो चीज़ में आप इंगेज हैं अभी आपको नहीं पसंद था, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेके वो बोलना चाहिए था कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे कोई और करियर पाथ चाहिए, तो वो चीज़ आपको माना जाता है। लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते, अपने पैशन, दोनों कार्ड बॉन्ड का आया है एंड बॉन्ड इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन। आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। देखिए, दोनों कार्ड इज ऑफ बॉन्ड एंड ऑब्स्टेकल में, यानी कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर आपका पैशन वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ चेंज योर पाथ, नहीं तो अगला स्टेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्लस नॉट गुड फॉर यू। सी, मुझे किसी प्रकार का फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है इस बात का। The same cards are repeating itself. You need to be confident. You need to work on yourself. Change your perspective. Because जिस नज़रिया से, जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, वो बहुत ही अलग है। एंड जिस पर्सपेक्टिव से आपके स्पिरिट गाइड देख रहे हैं, वो भी बहुत अलग है। सो यू नीड टू डू सम मेडिटेशन, कॉन्टैक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड, दे विल गिव योर आंसर। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मनी इन योर फ्यूचर। So I think the main obstacle is you. You are the obstacle of your path. You are taking the work as a burden. And अपना स्टैंड अप नहीं ले रहे, अपने चारों तरफ आप बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, फैमिली प्रेशर में आके अपना काम कर रहे हैं, या फिर किसी को दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जो कि एकदम अच्छा नहीं है। So please change it now. Please change it now. Now let's move to the next question. How to resolve these difficulties? That's strange. मैंने यहाँ लिखा है 4th क्वेश्चन में कनेक्शन विद द लव लाइफ, जो कि मैं ऐसा फील कर पा रही थी। एंड हियर द लवर कार्ड। हाउ टू रिसॉल्व द सिचुएशन इज, आई थिंक, कनेक्ट विथ योर लव वंस। आपके पेरेंट्स अगर वो प्रेशर नहीं कर रहे, अगर आपको वो समझते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ योर लव वंस, योर फ्रेंड, इट कुड बी योर फ्रेंड, योर पार्टनर, जो भी, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। See, you are immature अभी, you are not mature now. I think आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर लेने के शौकीन थे। आप चाहते थे कि मैं अलग अलग पाथ पे जाऊँ, मैं सबको एक्सप्लोर करूँ। एंड नाउ यू हैव चूजन अ पाथ विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, या फिर यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दिस पाथ। सी द नेक्स्ट कार्ड, द डेथ. The death card is end of cycle and beginning of something new. सो आई थिंक हाउ टू रिजॉल्व दिस, तो अपना पैशन समझिए, अपने लव्ड वन के पास जाइए, वो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। और आपका इंट्यूशन के हिसाब, आई थिंक योर इंट्यूशन इज़ गुड,
आप समझ रहे थे कि ये गलत है मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े जा रहे थे. तो आई थिंक यू शुड बिलीव योर इंट्यूशन, यू शुड मेडिटेट टू कनेक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड. दे विल आंसर योर क्वेश्चन. एंड प्लीज नो योर सेल्फ. अपने बारे में जानिए. ये कार्ड मतलब पूरा ग्राउंड पे गिर गया इस तरह से निकल के. सो आई थिंक अपने बारे में आप जानिए. सबसे पहले सबसे आपका फर्स्ट वर्क यही होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता नहीं है. दूसरों के लाइफ में इंटरफियर करने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ के बारे में जानिए. मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी सीरियस रीडिंग. Previously I was doing all love reading, but now अचानक से I am doing this reading because it's का एक ही कारण है कि it is very important to reach the right people on right time. I think the December month is going to be tough month for you. और the next month, this is a timeless reading. जब भी आपको मिले आपके लिए है. And अभी नवंबर चल रहा है, तो I am saying the December month. So the next month is going to be harsh and hard for you. लेकिन अगर अभी से आप चेंज करना अपने आप को शुरू कर दे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इजी टू पास. So I think you should not ignore this message. I think you need a travel. आप कहीं घूम फिर के आ जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए. आई थिंक आप बहुत स्ट्रेस ले चुके हैं, तो यू नीड टू बी रिलैक्स. इसके लिए आप कहीं ट्रैवल करके आ जाइए. देखिए बोथ द कार्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ कप्स. बोथ कार्ड्स हैं कि पुराने बातों को भूलकर आगे बढ़िए. कहीं घूम फिर के आ जाइए, कहीं ट्रैवल कर लीजिए अपने मनपसंद जगह पे, जहाँ आपको जाना बहुत पसंद था वहाँ जाके आप ट्रैवल कर लीजिए, या फिर कहीं भी रिलैक्स हो जाइए. बस जिस जगह पर है वहाँ पे आपका एनर्जी इतना डेंस हो चुका है कि अब आपको वहाँ से थोड़ा सा चेंज करने का ज़रूरत है. अगर आप चेंज नहीं भी कर सकते तो आप प्लीज़ रेगुलरली, मतलब हर शाम या जिस भी टाइम आप फ्री हो उस टाइम एक वॉक पे चले जाइए बाहर. और अगर आपको कोई ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट विल मेक योर माइंड फ्रेश एंड फिर आप अच्छे से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे. नेक्स्ट इज आई नो देर इज़ नो वन फॉर यू फॉर योर वेल बींग. मतलब आपके अच्छे के लिए आपका वेल विशर कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे. येस, नो वन इज़ देयर. और आपका भी एक ऐसा एनर्जी कन्फ्यूजन वाला जिसकी वजह आप सबसे कन्फ्लिक्ट कर ले रहे हो, सबसे झगड़ा कर ले रहे हैं, तो कोई आपके साथ अभी नहीं है. आई नो, बट द थिंग इज़ आपको आपके साथ खड़ा होना होगा. यू हैव टू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कनेक्शन विथ लव लाइफ. I am feeling your loved one will help you in this path, and that's why I was feeling the thing connection with your love life. See, I am continuously seeing it at this board because the fourth question written here is connection with love life, and now I felt really like come stress after reading this question. So let's take out क्या connection है. यू आर इमेच्योर. आप नहीं जानते आगे क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या प्रॉब्लम नहीं है. एंड आपको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, किसी सोशल पार्टी में जाना, सोशली होना नहीं पसंद है. आई नो, बट सी योर लव्ड वंस विल हेल्प यू अलॉट. योर पार्टनर, इफ़ यू हैव अ पार्टनर in relationship, then they will help you a lot. Please go and talk to them. And if you are single, then this is a message that a partner is going to enter in your life,
जो कि आपके लाइफ को थोड़ा इजी कर देंगे, जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योर होंगे, जो आपको भी समझाएंगे अच्छे से. बिकॉज सी द कार्ड एंड दिस इज ऑल्सो वांट कार्ड. सो आपको अपना पैशन दिखाएंगे कि आपका पैशन क्या है और आपको किस पाथ पे चलना चाहिए. आई थिंक कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, तो आपको वो ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए. द नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड. ये है कि आपके चारों तरफ, मैंने कहा ना कि योर मेजर प्रॉब्लम, मतलब मेन प्रॉब्लम, मेन ऑब्स्टेकल इज़ यू. आप खुद आपके प्रॉब्लम हैं. आपने अपने चारों तरफ फॉल्स स्टोरीज बना लिया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिना कुछ जाने, एंड विच रिज़ल्ट कि आप इतने स्ट्रेस में हैं अभी, क्योंकि आपके आँख में पट्टी बंधा हुआ है. यू आर ब्लाइंड नाउ. आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है. See the card. I said the connection with love word, and it is coming. I think if you are single, someone is going to enter in your life after December. And if you are in a relationship, then please go and contact with your partner. They will help you in this situation because they are mature than you. Now, the last question written there in the page is current guidance for you. So let me give the guidance. A lot of cards is falling, but I have to pick few cards. See. As I said, next month आपके लिए कुछ तो है problematic. देखिए, मगर स्ट्रेस, अपने माइंड से स्ट्रेस निकाल दीजिए. आप पहले बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत अच्छे मैनिपुलेटर थे, बट नाउ यू हैव चेंज्ड अ लॉट. सी द कार्ड्स आर टेलिंग, स्ट्रेस निकाल दीजिए, रिलैक्स रहिए, आराम से जिए, हर मोमेंट एंजॉय कीजिए. वैलिडिटी का वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए. मतलब कि अगर ये अच्छा होगा तब मैं खुश होऊंगा या कहीं जाऊंगा, नो, ऐसा मत कीजिए. क्योंकि आपके लाइफ में, नॉट टू से दिस, बट एवरीथिंग इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द प्लान. आपको नहीं दिख रहा होगा कि अच्छा हो रहा है या नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ गुड. सो यू डोंट नीड अ वैलिडिटी टू सेलिब्रेट. सी स्ट्रेंथ कार्ड, कॉन्फिडेंट रहिए, सब कुछ हो जाएगा. आपको ब्रेव होने को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस निकाल दीजिए. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज दिस, अगर आपको मन हो तो उसके अनुसार ही आप काम कीजिए. एंड यस, डू सम चैरिटी. जितना आप केओस एंड झगड़ा कर रहे हैं, आई थिंक यू नीड सम मेडिटेशन. थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए एंड सबसे थोड़ा हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए. क्योंकि दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस इज़ ऑफ नथिंग. क्योंकि ये आपके खुद के माइंड का केओस है, इसीलिए आप दूसरे से भी केओस कर रहे हैं या कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. सो थोड़ा फर्स्ट गिव देम फेयरनेस, लव एवरीवन, बी ओपन. नेक्स्ट थिंग इज नाइट ऑफ वॉन्ड, एक्शन, एडवेंचर, फियरलेसनेस. अगर आपको किसी और पाथ पे जाने का मन है, जो आपका पैशन है, प्लीज़ बी श्योर कि आपका पैशन क्या है, तभी आप उस पाथ पे जाइएगा. बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपने ये पाथ चूज़ किया, बट नाउ यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि मुझे ये करना चाहिए, एंड नाउ आप चेंज भी नहीं कर रहे उसे.
So I think you should change. I think this was your video. मैंने सारे टॉपिक्स पे आप लोगों को गाइडेंस दिया, मैंने सब कुछ आपको समझाने का कोशिश किया. एंड आई वुड से कि प्लीज़ थोड़ा ब्रेव होइए, कॉन्फिडेंट होइए, अपने स्ट्रेस को बाहर निकालिए. एंड आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहा है. बस यू नीड टू बी थोड़ा लेस स्ट्रेस, कम स्ट्रेस लीजिए, एंजाइटी कम लीजिए. आप देखिए, अगर आप इतना स्ट्रेसफुल होंगे तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ का. सो आई थिंक दिस वाज योर वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.